انٹرا پارٹی انتخابات، سالانہ گوشوارے اور دیگر تقاضے پورے نہ کرنے پر الیکشن کمیشن نے 4 سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن ختم کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ لوذا میں وزیراعلیٰ مریم نواز کی طرف سے الیکٹرک بسوں کا آن لائن افتتاح، وزیر مملکت عبدالرحمان خان کانجو، ارکان اسمبلی اور افسران نے بس میں سفر بھی کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر آفتاب اشرف کا فالیہ کے مختلف علاقوں کا دورہ، جنرل کریانہ سٹور، سبزی اور فروٹ شاپس اور گوشت کی دکانوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر جاوید اختر کا نارنگ منڈی میں بارشوں اور نالا ڈیگ سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، فیڈ عملے کو نقصانات کا فوری اور شفاف تخمینہ لگانے کی ہدایت کی۔ سرگودا میں اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کے تحت تقریب 500 سے زائد کاشتکاروں میں سرکاری ذریعہ راضی کے الاٹمنٹ سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ سجادہ نشین سید ہارون علی گیلانی کی میزبانی میں قومی مجلس مشاورت کا انعقاد، قومی یکجہتی، عوامی مسائل اور ریاستی اداروں پر اعتماد کے فروغ سے متعلق عام امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، جعلسازی کا مکروہ دھندہ کرنے پر یونٹ کو سیل کر دیا، مقدمہ درج، 1 ملزم گرفتار۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال چنوٹ کے عملے کی مبینہ غفلت، خاتون نے سڑک پر بچے کو جنم دے دیا، ایم ایس نے انکوائری کا حکم دے دیا۔ فیصل آباد ایئرپورٹ پر لاکھوں روپے مالیت کی منشیات بحرین سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ کمرے سے محنت کش کی تشدد زدہ لاش برآمد، شان کے جسم کے مختلف حصوں سے خون رس رہا تھا، گلا گھڑنے کے نشانات واضح تھے۔ مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں شہری کے قتل کے مقدمے نے نیا رخ اختیار کر لیا، سابق ایس ایچ او تھانہ مصطفیٰ آباد سمیت 7 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ آئی سی سی T20 رینکنگ، صاحبزادہ فرحان نے ابھیشیک شرما کو پیچھے چھوڑ دیا، ایشان کشن برستور پہلے نمبر پر موجود۔ اداکارہ سائمہ نور کی شاندار فٹنس ٹرانسفارمیشن دیکھ کر مداح حیران رہ گئے، سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل۔ السلام علیکم ناظرین، مشرق ڈیجیٹل کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد شعیب وینس اور میں ہوں یسرا شاہد۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ گھر ہو وہاں، سکون کا تحفظ ہو جہاں، اجوا سٹی لالیاں۔ الحمدللہ، شیخو پورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیاں میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی، اجوا سٹی لالیاں، خاص ان کے لیے جو بروقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیاں شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں۔ 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں، ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیاں جھنگ روڈ، موبائل 0308 8470 555۔ A project of Ajwa Builders۔
वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। इलेक्शन कमीशन ने 4 सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन खत्म करते हुए इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिए। फैसले की तफसीलात के मुताबिक सियासी जमातों को मुख्तलिफ वजूहात की वजह से डी लिस्ट किया गया है और चारों सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन खत्म करने के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। ECP की जानिब से जिन सियासी जमातों को डी लिस्ट किया गया है उनमें टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान, अवामी जमहूरी पार्टी पाकिस्तान, हम अवाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान रिफॉर्म पार्टी शामिल हैं। इस हवाले से बताया गया है कि इन सियासी जमातों को इंट्रा पार्टी इंतखाबात, सालाना घुशवारे और दीगर तकाजे पूरे न करने पर डी लिस्ट किया गया है। इन 4 सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूखी के बाद सियासी जमातों की ताज़ा फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन में दर्ज सियासी जमातों की तादाद कम होकर 164 हो गई है। लोधरा के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से इलेक्ट्रिक बसों का ऑनलाइन इफ्तिताह। ज़िलाई सतह पर पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस की रंगारंग इफ्तिताई तकरीब कांजू हाल ज़िला कौंसिल में मुनक्किद हुई। वफाकी वज़ीर ममलकत अब्दुर्रहमान खान कांजू मेहमान खसूसी थे। लोधरा से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे जलील रहमान के मुताबिक तकरीब में MNA मोहम्मद सदीक खान बलोच, MPA शाजी हयात तरीन, जवार हुसैन वडैच, पीर रफ़ीउद्दीन शाह, राजन सुल्तान पीर ज़ादा, मलिक शाह मोहम्मद जोया, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ, DPO अली बिन तारिक, ADC लियाकत अली गिलानी, AC फ़राकुल्लाह खान ने शिरकत की। सेक्रेटरी RTA ज़ैद हसन, CO ज़िला कौंसल सैयद मसलेउद्दीन, CDO ताहिर अब्बास भुट्टा, DIO खालिद रसूल और दीगर भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर ममलकत ने अरकान असम्बली के हमरा ज़िला कौंसिल ग्राउंड में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह किया। अब्दुर्रहमान खान कांजू, अरकान असम्बली और अफसरान ने करोड़ पक्का जाने वाली बस में सफ़र भी किया। वफाकी वज़ीर ममलकत ने करोड़ चौक पर इलेक्ट्रिक बस स्टेशन का इफ्तिताह भी किया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नुमान सदीक का दौरा जड़ावाला, मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के साथ साथ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का भी मुआयना किया। जड़ावाला से मशरक डिजिटल के उस्मान नफीस के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नुमान सदीक ने शहर भर में जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया और मुतलका महकमों को हदायत की कि तमाम मनसूबे मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किए जाएं ताकि अवाम को उनके समरात पर वक्त मिल सकें। डिप्टी कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का भी दौरा किया, मुख्तलिफ वार्ड्स, एमरजेंसी और दीगर शोबों का मुआयना किया और मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरकजी कब्रिस्तान में जगह की कमी के मसले को भी जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई और कहा कि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। मंडी बाउद्दीन से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे फ़याज़ रसूल मिर्ज़ा की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहाँ अवाम नास को सरकारी नरखों पर म्यारी अशिया खुरनोश की फराहमी और सफाई के बेहतर इंतजाम यकीनी बनाने के लिए तहसील इंतजामिया मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर मंडी बाउद्दीन अदील हैदर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर फालिया आफ्ताब अशरफ ने फालिया के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके जनरल स्टोर्स, करियाना स्टोर्स, सब्जी और फ्रूट शॉप्स और गोश्त की दुकानों का तफसीली मुआयना किया। मुआयने के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ दुकानों पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों, म्यार और सफाई की सूरत हाल का बरीक बीनी से जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने सब्जी, फल, गोश्त और दीगर अशिया खुरनोश की सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त का जायजा लिया और तमाम दुकानदारों को हदायत की कि वह नई रेट लिस्ट नुमाया जगह पर अवेजा रखें। डायरेक्टर ज़राअत तहसील लाहौर डिवीजन डॉक्टर जावेद अख्तर का नारंग मंडी में हालिया बारिशों और नाला डेक के ओवरफ्लो से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरा फसलों का जायजा लेते हुए फील्ड अमले को नुकसानात का फौरी और शफाफ तखमीना लगाने की हदायत की। नारंग मंडी से मशरक डिजिटल के शाहिद यूसुफ के मुताबिक डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर जावेद अख्तर ने डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तहसील शेखुपुरा चौधरी मोहम्मद शफीक और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तहसील मुरीद के मोहम्मद फारूक मलिक के हमरा नारंग, मुरीद के और गिरदोनवा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। हुकाम ने नंगल सादा, फतेहपुरी, नंगल ईसा, टिपालिया, ताजपुरा, डालावागा, चक भल्ला और नारंग मंडी समेत मुतादिद देहात में ज़ेरियाब आने वाली धान और दीगर फसलों के नुकसानात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर डॉक्टर जावेद अख्तर ने महकमा ज़राअत के फील्ड अमले को हदायत की कि मुतासरा फसलों के नुकसानात का फौरी, शफाफ और दुरुस्त तखमीना लगाया जाए ताकि काश्तकारों को बर वक्त रिलीफ फराहम किया जा सके। बाद उन्होंने काला शाह काकू में ज़ेर तामीर एग्री माल का भी मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत बेज़मीन काश्तकारों को बाख्तियार बनाने के लिए शुरू किए गए अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत आर्ट्स काउंसिल सरगोदा में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। ज़िला भर के 542 कामयाब दरखास्त गुजारों में सरकारी ज़राई अराजी के अलाटमेंट सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। सरगोदा से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे महद नवीद अख्तर के मुताबिक तकरीब के मेहमान खसूसी सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जवेद थे। इस मौका पर कमिश्नर सरगोदा डिवीजन हाफिज शौकत अली, डिप्टी कमिश्नर हुसैन अहमद रजा चौधरी, डायरेक्टर जनरल कच्ची आबादी मोहम्मद शाहिद, अरकान सूबाई असम्बली सरदार आसिम शेर मेकन, राना मुनवर गौस, मियाँ इकरामुल हक, मकामी लीगी रहनुमा अब्दुल रज़ाक ढिल्लू, असिस्टेंट कमिश्नर्स और कामयाब काश्तकारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब में मेहमान खसूसी ने कामयाब काश्तकारों में ज़राई अराजी के अलाटमेंट सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने ज़मीन पर बस्तियाँ बसाईं, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती हैं, नई जमालियात की तश्कील करती हैं। शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे।
शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे। अर्बन इश्यूज पर बात होगी। हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। सज्जादा नशीन दरबार हज़रत मियाँ मीर सैयद हारून अली गिलानी की मेज़बानी में कौमी मजलिस मुशावरत का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर की मारूफ रूहानी शख्सियात, उलमा, मशाइख, वकला और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में कौमी यकजहती, इस्तेकाम पाकिस्तान, अवामी मसाइल और रियासती इदारों पर एतमाद के फ़रोग़ से मुतल्लिक़ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नेशनल टाउन से मोहम्मद शाहज़ेब की रिपोर्ट के मुताबिक मुनक़दा कौमी मजलिस मुशावरत में मुल्क भर की बड़ी रूहानी गद्दियों के सज्जादा नशीनों, साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच, मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफ़ीक समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमा भी शरीक हुए। मुस्लिम लीग काफ के वफ़द में नदीम पहलवान, कोऑर्डिनेटर वज़ारत सनअत और तिजारत पंजाब मियाँ वहीद, इफ्तिखार अली ऐवान, नदीम पग्गावाला और अली रज़ा नदीम शामिल थे। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली, तरक्की और कौमी इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। CPO फैसलाबाद तनवीर हुसैन की ऑफिस में खुली कचहरी, शहरियों ने अपनी दरख्वास्तें पेश की और मसाइल के मुतल्लिक़ बताया। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे शबीर हुसैन आज़ाद के मुताबिक CPO ने मुतल्लिक़ा अफसरान को हदायत की शहरियों की शिकायत को मुकर्रर वक्त के अंदर हल करें। उन्होंने कहा, खुली कचहरी का मकसद शहरियों की शिकायत और उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करना है। शहरियों के साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी और गैर ज़रूरी ताख़ीर की सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जावेद नगर शेरगढ़ की मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियात मियाँ तैयब कामरान, अख्तर अली, मोहम्मद आबिद, चांद अली ज़ियारात मुक़द्दसा और उम्रे की सादत हासिल करने के बाद वतन वापस पहुँच गए। अबाई गाँव पहुँचने पर उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियाँ निछावर की गईं और फ़िज़ा अल्लाह अकबर के नारों से गूंजती रही। गुलाम अली हैदरी, अब्बास सोनू, चचा असगर अली और दिगर ने मुबारकबाद पेश की। DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद के हुक्म पर जंग रोड पर कार्रवाई। 1200 किलो कलवंजी, 100 किलो हालियों, 40 लीटर शीरा, रंग, कोटिंग मशीन और वज़न कांटा जब्त कर लिया गया। फैसलाबाद से दानिश शबीर की रिपोर्ट के मुताबिक जालसाजी का मकरूह धंधा करने पर यूनिट को सील कर दिया गया, जबकि मुकदमा दर्ज करते हुए एक मुलज़िम गिरफ्तार कर लिया गया। विजिलेंस टीम की तवील रैकी के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। नाकिस कलवंजी, हालियून के बीज और रंग मिलाकर कलवंजी तैयार की जा रही थी। DHQ अस्पताल चिन्योट के अमले की मुबैना गफलत। अस्पताल डिलीवरी के लिए आई खातून ने सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया। मशरक डिजिटल के काशिफ सरवर के मुताबिक लाइकीन का कहना है कि अस्पताल वालों ने कहा कि अभी डिलीवरी नहीं हो सकती। खातून को लेकर बाहर निकले तो खातून ने बच्चे को जन्म दे दिया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक माँ और बच्चे की हालत ठीक है। MSDHQ अस्पताल ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। रोड सीना बच्चा पैदा हो गया। ये है हॉस्पिटल दी जदीद दौर मरियम निवाज दा हॉस्पिटल कि बच्चा एमरजेंसी है कि नहीं पैदा हो सकता और आके ते रोड के उत्ते बच्चा पैदा हो गया। ये है साडी हुकूमत किते साडा DC सुतो है किते साडे सर हमले सुतो है इन्हें पूछने वाला कोई नहीं। बच्ची दा रोड के उत्ते डिलीवरी हो गई। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर लाखों रुपए मालियत की मंशियात बैरीन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। आज़ाद कश्मीर के शहर बाग के रहायशी फैज़ान से 1 किलो हेरोइन बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम को हवालात मुंतकिल कर दिया गया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम ने मंशियात बैग की तह में छुपा रखी थी। मुलजिम निजी एयरलाइन की परवाह से शारजा के रास्ते बैरीन जा रहा था। नहर के पुल के साथ टकराकर मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी, दूसरा नहर में जा गिरा। रेस्क्यू 1122 ने कई घंटे की तलाश के बाद लाश नहर से निकाल ली। मामू कांजन से हाफिज मोहसिन महमूद के मुताबिक चीचावतनी के रिहायशी 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद नवाही गाँव 498 गाफ पे के करीब सेम नहर के पुल से टकराकर नहर में जा गिरे। एक मोटरसाइकिल सवार सलमान वल जमील शदीद जख्मी हो गया, जबकि इरफान नहर में डूब गया, जिसकी लाश को रेस्क्यू 1122 की टीमों ने 15 घंटे बाद नवाही गाँव 504 गाफ पे के करीब से तलाश कर लिया। मकामी पुलिस ने लाश जरूरी कार्रवाई के बाद विरसा के हवाले कर दी। हादसे का शिकार होने वाले अफराद फैसलाबाद से चीचावतनी जा रहे थे। अब बढ़ते हैं एक और वक्फे की तरफ। देखते रहिए मशरक डिजिटल। क्या आपका ख्वाब है बैरून मुल्क तालीम, PR या स्किल्ड और बिजनेस इमिग्रेशन, लेकिन परेशान हैं कि आगाज कहां से करें? मशरक डिजिटल ला रहा है आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा मुस्तकबिल, जिसमें आपको मिलेगी मारूफ कंसल्टेंट की प्रोफेशनल और काबिल एतमाद रहनुमाई। कौन सा कोर्स, कौन सा मुल्क और कौन सी यूनिवर्सिटी, आपको मिलेगा आपके प्रोफाइल के मुताबिक बेहतरीन रास्ता। कोई गलत दावे नहीं, कोई शॉर्टकट्स नहीं, सिर्फ वाज़ेह प्लान, बरवक्त रहनुमाई और दुरुस्त फैसले में मुआवनत। इस सब कुछ के लिए देखिए प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल हर जुमा की रात 8 बजे सिर्फ मशरक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। जावेद नगर शेरगढ़ से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे डॉक्टर मुदस्सिर सदीक राय की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जिसके मुताबिक
24D शेरगढ़ का रहायशी 22 साल मेहनत का शान अली वल्द मोहम्मद सदीक सतो कतला लाहौर में मार्बल टाइल्स की रगड़ाई का काम करता था। हस्ब मूल घर का सोया। रात 2 बजे नामालूम शख्स की कॉल आई, जिसे घर से बाहर निकल कर सुना और दोबारा कमरे में सो गया। अल सुबह पड़ोसियों ने कमरे में तशद्दुद लाश देखी। पैर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून रिस रहा था और दुपट्टे से गला घुटने के निशानात वाज़ेह थे। हैरत अंगेज़ अमर यह है कि 2 बजे आने वाली कॉल भी मोबाइल की कॉल लिस्ट से डिलीट कर दी गई थी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। घरेलू तनाज़े पर 2 ग्रुपों में झगड़ा, खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। पोर्ट अब्बास से मशरिक डिजिटल के नईम सहर के मुताबिक नवाही इलाका चक 230 R9 में घरेलू तनाज़े पर रिश्तेदारों के 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हो गया, जिसके नतीजे में खातून समेत 2 अफराद चाकू के वार से जख्मी हो गए। जख्मियों में अब्दुल्ला और जुबैदा शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और बादजा मजीद इलाज के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फोर्ट अब्बास मुंतकिल कर दिया। फैसलाबाद थाना समनाबाद का इलाका एक बार फिर गोलियों की थरथराहट से गूंज उठा। रेडेक्स रोड रशीद नगर में शहरी के घर नामालूम अफराद की फायरिंग से इलाके में खौफ और राज फैल गया। फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज मशरिक डिजिटल को मसूल हो गई। फुटेज में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों को शहरी के घर पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुलजमान की जानिब से फायरिंग करने की वजूहात सामने ना आ सकी। मुस्तफाबाद में मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में शहरी के कत्ल के मुकदमे ने नया रुख इख्तियार कर लिया। FIA ने इंक्वायरी में इल्जामात दुरुस्त पाए जाने पर साबिक SHO थाना मुस्तफाबाद समेत 7 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि DPO कसूर ने तमाम नामजद एहलकारों को मुअत्तल करते हुए महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मशरिक डिजिटल के शहजाद अहमद के मुताबिक मुस्तफाबाद में 2 साल कबल मुबैना पुलिस मुकाबले में लाहौर के रिहायशी मोहम्मद रिजवान की हलाकत के मुकदमे में अहम पेशरफ सामने आई है। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद साबिक SHO थाना मुस्तफाबाद हसन इमरान समेत 7 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में साबिक SHO हसन इमरान, सब इंस्पेक्टर सादिक, मनसब डोगर, तारिक महमूद, हेड कांस्टेबल इश्तियाक, कांस्टेबल मोहम्मद याकूब और ड्राइवर अरशद को नामजद किया गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला खुद साख्ता करार दिया गया और तमाम नामजद एहलकार जिम्मेदार पाए गए। ज़राए के मुताबिक मुलजमान की जमानतें खारिज होने के बाद साबिक SHO हसन इमरान और दीगर एहलकार अहाता अदालत से फरार हो गए, जबकि पुलिस की जानिब से उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान ने मुकदमे में नामजद तमाम पुलिस एहलकारों को फौरी तौर पर मुअत्तल करते हुए उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मोटरसाइकिल चोर गैंग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। फैक्ट्री एरिया पुलिस फैसलाबाद ने 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। SHO फैक्ट्री एरिया मोहम्मद रियाज अटवाल ने गैंग के सरगना बिलाल और साथी मुबीन अशरफ को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार गैंग ने 10 वारदातों का इंकशाफ किया। चोरी की गई 8 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। पाकिस्तान के ओपनर साहबजादा फरहान ने ICC की T20 इंटरनेशनल बैटर्स रैंकिंग में भारत के अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ते हुए दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। साहबजादा फरहान 848 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गए, जबकि 819 पॉइंट्स रखने वाले अभिषेक शर्मा तीसरे नंबर पर चले गए। भारत के ईशान किशन 910 पॉइंट्स के साथ बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं। T20 के बॉलर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के स्पिनर इब्रार अहमद 736 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर बरकरार हैं, जबकि अफगानिस्तान के राशिद खान बदस्तूर सर फहरिस्त और इंग्लैंड के आदिल रशीद तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। सीनियर अदाकारा साइमा नूर की फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन और तवानाई सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज़ बन गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में 58 साला साइमा नूर को स्क्वाट्स, कैटल बेल, स्विंग समेत मुख्तलिफ मुश्किल वर्जिशें करते देखा जा सकता है, जिस पर सार्फिन ने उनकी ताकत, स्टेमिना और फिटनेस से भरपूर तर्ज ज़िंदगी की तारीफ़ की है। मदाहों ने उन्हें एवरग्रीन करार देते हुए उनकी जवान नज़र आने वाली शख्सियत को सराहा है। अदाकारा ने बताया कि एक वक्त ऐसा भी था जब मैं खुद को ज़ायद वज़न का शिकार महसूस करती थी, जिसके बाद मैंने अपनी सेहत बेहतर बनाने के लिए तर्ज ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ की। साइमा नूर के मुताबिक मैं किसी पेचीदा डाइट पर अमल नहीं करती, मतवाज़न ग़िज़ा कम मिकदार में खाती हूँ। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।